हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज का जो है महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। फर्स्ट ईयर द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड टू द हेयर सिस्टम ऑफ द एंट्रेंस टीम्स. According to the single transferable vote system, each voter can be cast only one vote, which can be transferred to other candidates if necessary according to the preference of the voter. Therefore, this system is also called the preferentialist system. This system works under following condition. The first condition here, every constituency should be a multi-member constituency electing 3 or more members. And second here, a voter has only single effective vote, which may be cast the other to the preference of first, second, third, or may be preference, and there is the candidate. The voter right to the 1, 2, 3 and 1 there against the name of the candidate of his choose. But the voter cannot be cast all the preference in the favor of only one candidate. In order to be elected to a candidate must be score a contain quota of votes. The quota is determined by dividing the total votes cast by number of seats in the constituency. There is a quota here. A formula arrived. The total number of votes polled and total number of the seats in the constituency plus 1. There is a formula here. For instance, if a number of seats in the constituency is a 3, or total number of votes cast is a 12,000, the quota will be. The counting of votes began with the first performance votes. A candidate scored to the prescribed quota is the basis of the first performance vote in a declared elected and his the scrubs votes. If any are transferred to be a candidate having second preference or indicated on the ballot paper, and so on. If one or more seats are left vacant because some candidates do not score the required quota, the candidate getting to least number of votes are eliminated and their votes are transferred according to the preference of the voter. And this system has adopted in India for the election of the member of the Rajya Sabha and the state legislative council. The method is also followed for the election of President of India. And the next here, list system. This is another method of proportional to the representation. Under this system, large multi-member constituencies are formed and any candidates are elected from each constituency. Each political party is submit a list of the candidate for the election from a particular constituency. A voter votes not individually, but it is a list of the candidate of different is a political party. These votes are indivisible if your 4 representatives are to be elected from the constituency. The voter has no option to cast 2 votes on the one list, 2 on the other list. These voters has to be elected all the 4 candidates from either of the list. A quota is determined and the candidates are declared elected according to the quota votes is squared by the political party. A party entitled to be 3 seats according to the quota will be declared the first 3 candidates on it is a list elected. There are 2 forms of the list system, the bonded list and the free list. And in the bonded list, the voter no choose or expect to the endorse or reject the entire list of candidates and prepared by a political party. But in a free list, their voters will be electing their list can give his over one order to performance for the candidate. The list system is followed by the election in a Switzerland. एकल संक्रमण मत प्रणाली कहते हैं इसे हायर सिस्टम अथवा आंध्र योजना के नाम से भी जाना जाता है। और इस प्रणाली के अंतर्गत एक मतदाता केवल एक ही मत देने का अधिकार होता है, यानी एक मतदाता सिर्फ एक ही वोट देने का अधिकारी होता है, किंतु यदि वह चाहे तो अपने इस वोट को किसी दूसरे प्रत्याशी को भी बदल कर दे सकता है। इसके लिए उसे मत पत्र पर अपनी जो है वैधता दर्ज करनी पड़ती है और यह प्रणाली निम्न विधि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रणाली में 3 अथवा उससे अधिक प्रत्याशी का होना आवश्यक होता है।
दूसरा होगा ये कि एक मतदाता जो है वरीयता क्रम में एक ही वोट को कई प्रत्याशी को भी दे सकता है, किंतु उसके लिए उसे मतपत्र में 1, 2, 3 अथवा इससे आगे तक अपनी इच्छा अनुसार वरीयता जो निर्धारित करनी होती है। मतदाता अपनी सभी वरीयता एक ही प्रत्याशी के आगे नहीं लिख सकता है। उसके पश्चात हमारा अगला पॉइंट घ है, जिसमें वरीयता क्रम में सबसे ऊपर आने वाली प्रत्याशी को ही उसका जो है वोट मिलता है। किंतु यदि किसी स्थिति में दो प्रत्याशी बराबर मत प्राप्त कर लेते हैं, तब ऐसी स्थिति में प्रत्याशी को वोटा जो होता है कोटा निर्धारित करती है, यानी कोटा से किया जाता है। उस कोटे के आधार पर जिसकी वरीयता सबसे पहले आती है उसे वोट मिल जाता है। कोटा अगर निम्नलिखित सूत्र द्वारा निर्धारित की जा सकती है, जैसे कि कोटा है और आप देखोगे डाले गए कुल मतों की संख्या +1, कुल संख्याओं की संख्या +1। तो इसमें अगर आप देखोगे तो कोटा के रिगार्डिंग जो होगा डाले गए कुल मतों की संख्या बटा कुल सीटों की संख्या +1, तो +1 नीचे लेना है और उसके बाद जो है इसको +1 ऊपर रखना है। मान लीजिए किसी चुनाव में कुल प्रत्याशियों की संख्या 3 है और कुल डाले गए मतों की संख्या जो है 20,000 है, तो कोटा क्या होगी? देखिए कोटा क्या होगा, ऊपर हमने 20,000 ले लिया और नीचे जो है 3 + 1 ले लिया, यानी टोटल कितना हो गया 4। 4 से हमने इसको डिवाइड किया, कितना आया? ठीक है, यहाँ पर कितना आ गया देख लो, यहाँ पर आ गया 5,000, लेकिन 5,000 में हमने एक प्लस भी तो करना है, तो एक प्लस करके हमने 5,000 एक वोट कर दिया। तो कभी कभी यदि कोई प्रत्याशी उस कोटे को नहीं पहुँच पाते हैं तो उस कोटे को खाली से छोड़ दिया जाता है और चुनाव की यह प्रणाली जो है राज्यसभा के प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए अपनाई जाती है। और यही प्रणाली भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भी अपनाई जाती है, जिसके बारे में हमने पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ये जो कोटा का जो सोल्यूशन है वो इंग्लिश में नहीं था, तो जो है इंग्लिश वाले बच्चे भी इसको हिंदी से नोट कर सकते हैं कि इस तरह से जो है हम इसको कैलकुलेशन करते हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष है सीमित मत व्यवस्था। कहते हैं यह व्यवस्था अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एक अन्य पद्धति है और इस व्यवस्था के अंतर्गत बहुत सदस्य निर्वाचन क्षेत्र आते हैं। इसमें कम से कम 3 प्रत्याशी होते हैं तथा एक मतदाता एक प्रत्याशी को एक वोट दे सकता है। इसके बाद हर मतदाता को जो सीटों के जो है अनुसार वोट घटते जाते हैं। उदाहरण के लिए किसी निर्वाचन क्षेत्र में 4 सदस्यों को चुना जाना है, तो ऐसे मतदाता चाहे तो 2 या 3 प्रत्याशियों को अपना जो है वोट डाल सकता है, किंतु वह अपने 5 वोट सिर्फ एक ही प्रत्याशी को नहीं दे सकता। ऐसा इसलिए भी किया जाता है कि अल्पसंख्यक वर्ग से कम एक प्रत्याशी का स्थान सुरक्षित बनाया जा सके और इस तरह उन 5 में से कम एक सीट के जो है अल्पसंख्यक वर्ग को प्रतिनिधित्व के लिए सुरक्षित हो जाती है। और इस प्रणाली के अधीन यदि एक सीट के लिए 2 सदस्य चुनाव लड़ रहे हों तो उसमें सबसे अधिक मत प्राप्त होंगे उसे विजय घोषित कर दिया जाएगा। किंतु यदि 2 या 2 से अधिक प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं और उनमें किसी भी बहुमत प्राप्त नहीं किया है तो इस चुनाव को पुण्य कराया भी जाता है। जो द्वितीय मत प्रणाली के द्वारा कराया जाता है, इसका अर्थ यह हुआ कि चुनाव के कुछ ही दिनों बाद मतदाताओं को पुण्य वोट डालना पड़ता है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक इज अदर मिनोरिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। तो व्हाट यू मीन टू द अदर मिनोरिटी हियर? Apart from proportion to the representations and some other electoral method has also been to be devised to ensure the adequate representation to the minority group in the legislature. This system of minority representation are flowing. The first point here is a cumulative voter system. According to this system, a voter has a many votes as the number of seats in the constituency. The voter has an option. He or she can be cast vote for all the candidate or concentrate all his or her vote for just one candidate. For example, if 5 members are to be selected, their voter may be give his or her vote to be only one candidate or distribute it among a few or all candidate. This system is therefore many provide as a opportunity to the well-organized minority to be elected its representative by the accumulating all its votes in a favor of one candidate. The second point here is a limited vote plan. This system is adopted in the multi-member constituency where is the minimum of 3 candidates are to be elected. Under this system, every voter can vote for more than one candidate, but he or she cannot vote for all the candidates, and that is why it is known as the limited vote system. For example, if there are 6 seats,
as a constituency, every voter will be have a right to be vote only for candidate. The voter has to be vote to different candidate of his or her choose, but he or she cannot be vote for more than 4 candidates. हमारा जो अगला टॉपिक आया है अन्य अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व प्रणाली। देखिए ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा कि अन्य अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या होती है। कहते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अतिरिक्त विधानमंडलों के अल्पसंख्यकों के समूचे प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए कुछ अन्य तरीके भी निकाले हैं। अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की यह प्रणाली कुछ इस प्रकार दर्शाई जाती है। पहला तो यही दर्शाती है कि बहुसंख्यक मत प्रणाली। इस प्रणाली में मतदाता जो है उतने ही मत देने का अधिकार रखता है जितनी निर्वाचन क्षेत्र में सीटें निर्धारित होती है। इस प्रणाली में मतदाताओं के पास विकल्प होते हैं। कोई भी महिला अथवा पुरुष मतदाता अपने सभी मत प्रत्याशियों में बांट सकता है या फिर सारे के सारे मत एक ही प्रत्याशी को भी दे सकता है। उदाहरण के लिए यदि एक निर्वाचन क्षेत्र में 5 सदस्य चुने जाते हैं तो मतदाता अपने 5 मत 5 प्रत्याशियों में बांट सकता है या फिर 5 मत एक प्रत्याशी को दे सकता है। इस प्रकार इस प्रणाली में एक सुसंगठित अल्पसंख्यक समूह अपने मतदाताओं में जो है ग्राम सहमति बनाकर अपने प्रत्याशी के पक्ष में सारे मत जो है दिलवा कर उसे जितवा भी सकता है। तो ये बहुत साधारण मेथड है जिसमें कोई भी प्रत्याशी आसानी से जीत सकता है। उसके पश्चात सीमित मत प्रणाली कहते हैं यह प्रणाली उन निर्वाचन क्षेत्र में अपनाई जाती है जहाँ 3 या 3 से अधिक सदस्य का चुनाव होना होता है। इसमें एक मतदाता एक से अधिक प्रत्याशी को मत दे सकता है परंतु सभी प्रत्याशियों को नहीं, इसलिए इसे सीमित मत प्रणाली भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में 6 सीटें हैं तो प्रत्येक मतदाता 4 प्रत्याशी को मत दे सकता है, ना कि किसी एक प्रत्याशी के सारे मत। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हियर द सेकंड वॉलेट सिस्टम। व्हाट यू मीन टू सेकंड वॉलेट सिस्टम हियर? इन द इलेक्शन there are only 2 candidates contested election for the single seat. The one who scored a clear majority at least 50% plus 1 is declared selected. But when there is a more than 2 candidates, it may be a case that none of the candidates score on a absolute of majority. In this case, second ballot is added, which means to vote are again cast after few days. In this second ballot, only 2 candidates who had issued the maximum the member of vote in the first poll remain in the field. After voting, one who is scored more than 50% of vote in the declared elected. There is the most important here. For example, in a constituency, 3 candidates are contesting. There is an election. The total number of the vote polled are the 12,000 vote. The candidate A is sure to the 5,000 vote. There is a candidate B is secured to the 4,000 vote and candidate C is the 3,000 vote. In such a situation, no candidate get a seat or majority than 6,001 votes, which is a necessary holding of second ballot. The candidate in the case of candidate C who has scored least number of votes is a dropped. As such, there is a contest now remaining is between A and B. If B secure the majority at the second poll, then a B and not a is the declare of successful. This system is a practice is the French for the election and president and national assembly also. उसके पश्चात हमारे समक्ष पुण्य मतदान प्रणाली। देखिए पुण्य मतदान प्रणाली होती क्या है? कहते चुनाव में यदि किसी सीट के लिए 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हो तो जो है सपोज बहुमत 50% प्लस 1 प्राप्त करने वाले प्रत्याशी विजय होता है। ठीक है, परंतु 2 या 2 से अधिक प्रत्याशी होने पर ऐसा भी हो सकता है कि किसी भी प्रत्याशी को सपोज बहुमत न मिला हो और इस स्थिति में पुण्य मतदान कराया जाता है। इस पुण्य मतदान में अधिकतम जो है मत प्राप्त करने वाले 2 प्रत्याशी के लिए मतदान किया जाता है। मतदान के बाद 50% से अधिक मत प्राप्त करने वाला प्रत्याशी विजय होता है। उदाहरण के लिए अगर एक बात देखें, यदि किसी विधानसभा सीट के लिए 3 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे और इसमें कुल जो सीट थी जो वोट डालने वाली थी वो थी 12,000 वोट डालने थी। प्रत्याशी ए को जो है 5,000 वोट मिला है, प्रत्याशी बी को 4,000 मिला है, प्रत्याशी सी को 3,000 वोट मिले हैं। तो इस स्थिति में किसी प्रत्याशी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है जो कि 6,001 था, वोट नहीं मिल पाया है। अंततः पुण्य जो है मतदान अवश्य हो जाता है। प्रत्याशी सी जिसे सबसे कम वोट मिलते हैं को अलग करके प्रत्याशी ए और बी के दोनों मतदान कराया जाता है। यदि पुण्य मतदान में बी को अधिक मत मिलते हैं
तो वह विजय होता है। यह प्रणाली फ्रांस में राष्ट्रपति और राष्ट्रीय सभा के निर्वाचन के लिए उपयुक्त किया जाता है, जो कि काफ़ी मानने में इम्पोर्टेंट भी रहता है और वहाँ पर मतदान करने की प्रणाली भी है। तो इसी के साथ जो है हमारा व्यास मताधिकार जो थी चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट था, तो उसको समझा भी होगा, सोचा भी होगा और जाना भी होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है ख़त्म हो जाता है। आगे का चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसमें दो बातें इंपॉर्टेंट होती है। पहला तो ये कि ये वीडियो जितना हो सके दूसरे बच्चों तक भी पहुँचाने के लिए आपको अग्रसर होना है। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये रहता है कि अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर आप चैनल को दोबारा देखना चाहोगे और यूट्यूब पर सर्च करोगे त्रिपान स्टडी सेंटर तो आ तो बेशकली जाएगा, लेकिन वहाँ पर जो है यूट्यूब जो है नाम वहाँ गलत कर देगा, त्रिपान की जगह त्रिपुरा कर देगा, जो रिसर्च में नहीं आ पाएगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेने में ही भलाई है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो इससे जो भी आप टॉपिक देखना चाहोगे इसके मेन लिंक पे आपको मिल जाएगा, जहां पर आपको हर एक वीडियो जो है आसानी से उपलब्ध रहेगा। इसमें जो भी वीडियो आपके लिए फायदेमंद होगा उसको देख के समझ के जो है आप एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए अग्रसर हो सकते हो।